सिरसा में 750 शहीद किसानों के सम्मान में 750 शहीद किसानों का बलिदान याद करेगा हिंदुस्तान। भुलाने नहीं देंगे इस सरकार को और उनकी कुर्बानी को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। इस सरकार के अहंकार को तोड़ने का काम करेंगे और हरियाणा में परिवर्तन के लिए, हरियाणा को सही विकास के रास्ते पे लेके जाने के लिए रैली कर रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात जो आज एक नई बात, बाकी तो चलती रहती है, तो आज ये मैं आप सबके साथ ये जानकारी साझा कर रहा हूँ। बीजेपी जेजेपी में एक और समझौता हो गया है। गठबंधन का समझौता नहीं, अब गठबंधन तोड़ने का घोषित समझौता हो गया। इलेक्शन के नज़दीक ये गठबंधन तोड़ा जाएगा ताकि भाजपा विरोधी वोट कांग्रेस पार्टी की वोट में सेंधमारी डालने के लिए दोबारा से जेजेपी और इनेलो जैसी पार्टियों को दोबारा से फील्ड में उतारा जाए। इस नियत से ये गठबंधन तोड़ने का एक और जो है समझौता इनके बीच में हो गया है, ये हमारा आज कहना है। मगर इस बार हरियाणा की जनता जागरूक हो चुकी है, किसी के झांसे में नहीं आएगी और बड़े बहुमत से कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में बनेगी। हाँ जी साथियों, ਅਸੀਂ पहुंचे जी पिंड संत नगर जो तहसील राणिया ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ कि दविंदर हुड्डा जी मिनरवा स्कूल ਦੇ ਵਿੱਚ कुछ ही देर 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਾ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ 1:30-2 ਵਜੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ 4 ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਟਾਈਮ ਜੋ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਗਾਹਾਂ ਇੱਧਰ ਕਰੇ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੈ, ਨਿਗਾਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕ ਵੱਲ ਦੀ ਤਰਫ ਹੈ ਜਿੱਧਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆ। ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਦਵਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮਿਨਰਵਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਢੋਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਢੋਲ ਢਵੱਈਏ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਕਿਲੇ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਰਮਾ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਿਨਰਵਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮਿਨਰਵਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦਵਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਲੇ ਵਾਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਦਵਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਵਾਗਤ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਥੀਓ ਮਿਨਰਵਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਕਿਲੇ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਡਾਕਟਰ ਕੇਵੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਰਮਾ ਜੀ ਸੰਤ ਨਗਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ, ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਮਿਕ ਹਸਤੀਆਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ 2 ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ 4 ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਵਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੋ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਯੁਵਾਵਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁੱਡਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁੱਡਾ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਡਾਕਟਰ ਕੇਵੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਲੇ ਵਾਲਾ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਗੜੀ ਪਹਿਨਾ ਹੁੱਡਾ ਜੀ ਦਾ ਤਸਵੀਰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਲੇ ਵਾਲਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਕਿਲੇ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਕੇਵੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਕੇਵੀ ਸਿੰਘ ਸ਼ੀਸ਼ਪਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ।
ਹੁਣ ਸ਼ਾਲ ਭੇਟ ਕਰਨੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੀਡੀਓ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਰਦਾਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਰਕ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਗੇ। जिन्ने भी साडे वीर भैन आए ने सब का इत्थे पहुंचण ते मैं ग्राम पंचायत संतनगर वालों ते अपने पिंड वालों सारे का जिन्हें कहने बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तुसीं साडे पिंड दे विच आके साडे पिंड की शान बढ़ाई है। पर बहुत बहुत हार्दिक दिल से धन्यवाद करता हूँ। और सबसे पहले ज़्यादा मैं मेरे संघर्ष के साथी और कांग्रेस के बहुत ही बड़े वरिष्ठ नेता मेरे सरदार लखा सिंह जी किल्लेवाला जी और इनका पूरे परिवार का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद हूं, जो पिछले 10 दिन से रात दिन लगे हुए हैं इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए। और मैं दीपेंद्र जी को भी बताना चाहता हूं, मैं भाई दीपेंद्र जी को भी बताना चाहता हूं, पिछले 10 दिन से रैली की इतनी तैयारियां कर रखी है इन्होंने। ये 3-4 गांव है जी यहाँ पे, हरिपुरा, जगवेलेरा, संतनगर, करीवाड़ा। सबसे ज्यादा ये कहते हैं मैं यहाँ से 3 से 3,500 आदमी निकालने का इसमें काम करूंगा। इनके पूरे परिवार ने जी 2 बेटे हैं इनके, रणजीत सिंह एंड शेर सिंह। इन्होंने भी बहुत 10 दिन से जी पूरी मेहनत करके पूरा काम कर रहे हैं रैली को कामयाब बनाने के लिए। ज्यादा ना मैं कुछ बोलूंगा, मैं तो आपसे यही निवेदन करने आया हूँ। बाकी भाई दीपेंद्र जी और डॉक्टर साहब और विधायक जी बताएंगे आपको कि आप ज्यादा से ज्यादा किसान मजदूर जन आक्रोश जो रैली रखी है हुड्डा साहब ने 24 दिसंबर को सिरसा के अंदर, उसमें आप भारी संख्या में वहां पे पहुंचने का काम करें। और जितने लोग आप यहां पर आए हैं वो आज आश्वासन देके जाएं कि आप अपने साथ 10-10, 20-20 आदमी लेकर उस रैली में पहुंचकर कामयाब करेंगे। तो एक बार हाथ उठा के आप लखा भाई साहब को मैं कहूंगा, एक बार हाथ उठा के आप दीपेंद्र जी को एक बार आश्वासन दे दीजिए, अपने साथ 10-10, 20-20 आदमी लेके आप इस रैली को कामयाब करोगे। और इसी के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही आदरणीय भाई दविंदर सिंह जी हुड्डा, डॉक्टर केवी सिंह जी, शीशपाल जी अंदौरा साहब, शहबाज जोधपुरिया जी, कसवा जी, अपना सुविंदर सिंह सरपंच, पूर्ण सिंह जी विरक। मैं तो कभी बोलिया नहीं, दविंदर जी अज चलो मैंने बुलाता ना, मैं बोल पैना। दविंदर जी जदों कांग्रेस पार्टी की सरकार सी ना, उदों घट तो घट भी इन्ने मकान 100-150 मकान जिहड़ा सी, दविंदर जी सुनिया जी, जदों कांग्रेस की सरकार सी साडे मजदूरां दे 150-200 मकान जिहड़ा ना वो डॉक्टर केवी सिंह की किरपा दे नाल जदों असीं फार्म देना उदों ही मकान इन्हां दा मंजूर हो जांदा सी। अज दे हालात ये ने भी 10 साल हो गए ने, किते शक्ल ही नहीं वेखी मकान की भी किसी मजदूर नूं जां रिपेयर नूं आखी जांदे रिपेयर फार्मां दे पैसे लई ना ते कोई रिपेयर ते ना कोई गल ते ना कोई बात। साडे इत्थे स्कूल है हरिजना दा, ये कनाल थां है जी सारा, दविंदर जी कनाल थां सारा 1000 बच्चा है। ਉਹਦੇ वास्ते हुण रिक्वेस्ट की सीएम साहब नूं भी 2 किले थां भी देने आ, उन्होंने सानूं हाँ की भी तुहानूं असीं देंगे, ना कोई थां मिलिया ते ना कोई पैसा ते ना कोई स्कूल। साडी ते बड़ी अर्ज बेनती तगड़िया ही तुहाडी बड़ा शुक्रगुजार करांगे भी जदों भी तुहाडी सरकार आ जे साडे हरिजन परिवारां दे बच्चे ने, होर किसी सरदार दा कोई बच्चा नहीं, कोई ते कॉलेज पा लैंदा, कोई किते दिल्ली ते कोई चंडीगढ़। इन्हां बच्चियां दा हुण हरिजन बच्चियां दा ते एक स्कूल ही है, वो भी साडे पिंड च असीं जगह भी देंदे सां पर सानूं कोई सहायता नहीं मिली। ते साडी दर्ज बेनती आई भी जदों भी अपनी सरकार आवे साडा जिहड़ा पिंड वल जरूर ध्यान करिया जे ते इलाके वल भी। धन्यवाद, सत श्री अकाल। की आवाज भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी। और दीपेंद्र जी ने कहा है कि हम लेट हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि आप सबको बोलना है, तो मैं पूरे सम्मानित मंच और सामने बैठे हुए मेरे संतनगर और इस इलाके के सभी प्रबुद्ध जन, कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता जन, माता बहनें, पत्रकार बंधु, आज जो आपके बीच में आने का प्रोग्राम है, जिस प्रकार से पता है आपको कि आने वाली 24 तारीख को सिरसा के अंदर एक ऐतिहासिक रैली, जो 750 से ज्यादा किसान शहीद हो गए थे, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के आह्वान पर एक विशाल रैली, किसान मजदूर जन आक्रोश रैली की जा रही है। उसका न्योता देने के लिए आपको आए हैं। इस इलाके से
हमारा बहुत पुराना संबंध है। जब ऐलनाबाद हल्का होता था तो चौधरी ओम प्रकाश केरवाला जी मेरे पिताजी आपके बीच में आते थे और मिलके हम जितना कर पाते इस इलाके में आप लोगों के प्यार और शौक से जो बन पड़ा बहुत कुछ करने की कोशिश की। और अब मुझे कालावाली में वहां की जनता ने विधायक के रूप में चुना, पर आज भी आपके साथ वही लगाव वही प्यार है। रही बात हमारी आपकी, उसके अलावा जिन शख्स को आज आप सुनने के लिए आए चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, मैं बहुत ज्यादा बात राजनीतिक नहीं करूंगा, पर एक बात आपको जरूर कहने जा रहा हूं। ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के बेटे, जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे तो आपको याद है कि किस प्रकार किसान आम वर्ग खुशी था। हर तरफ जब किसान को सोचता था कि ट्यूबवेल कनेक्शन चाहिए, तीसरे दिन ट्यूबवेल कनेक्शन मिल जाया करते थे। 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने 1 इंच जमीन किसी गरीब को नहीं दी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने 100 गज के प्लाट दे दिए 4.25 लाख लोगों को पूरे हरियाणा में। आपको याद होगा कि किस तरीके से चाहे पानी की टंकी हो, इस क्षेत्र में बिजली घर लगाने की बात हो, O2 झील की बात हो, तमाम काम है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के काल में हुए। अब उनके सपुत्र उस लीग को आगे खींच रहे हैं। आज पूरे हरियाणा ही नहीं पूरे देश के अंदर चौधरी दीपेंद्र सिंह जी के नाम का डंका है। हर नौजवान से लेके बुजुर्ग से लेके किसान, हर आदमी चाहता है कि हमारा नेता चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी जैसा हो। और तमाम साथियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। लखा सिंह जी की टीम ने बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, इसके लिए भी मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और विशाल वर्मा द्वारा आयोजित इस नामधारी समुदाय के सबसे बड़े गांव संत नगर में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे राज्यसभा के सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, सम्मानित मंच, उपस्थित गांव के सभी सम्मानित बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, ज्यादा लंबी बात ना करते हुए, मेरा तो आप लोगों से बहुत लंबा लगाव रहा है और आपने जब भी एक मौका मेरे आदरणीय नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ओएसडी के रूप में मुझे दिया था और मैंने मेरा पूरा प्रयास किया हर व्यक्ति की आवाज को बुलंद करने का, आपकी बात को मेरे आदरणीय नेता तक पहुंचाकर हर समस्या को हल कराने का प्रयास हमने किया था। वैसे मेरी बेटी सरपंच प्रीत इंद्र कौर ने जो बात रखी थी, मैं दीपेंद्र जी से चाहूंगा कि हमें पहले जो एक जन पंचायत हुई थी O2 में 2005 या 6 के अंदर, और उस वक्त O2 झील की खुदाई की बात रखी थी और हुड्डा साहब ने उसको मंजूरी दे दी थी। सिर्फ 2 फेज की खुदाई हो पाई, 2 फेज की खुदाई बाकी रह गई। तो मैं आपसे यही उनकी बात पे मोहर लगाते हुए आपसे निवेदन है कि जब भी कांग्रेस का आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की है और मुख्यमंत्री भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे, तो मैं आपसे निवेदन कि बाकी के 2 चरणों की खुदाई करवाकर और इनके जो तट हैं, जो किनारे हैं, उनको चारों पक्का करवाकर इस तरह का बंदोबस्त करें कि दोबारा कभी आपदा ना आ सके। तो मैं एक बार फिर निवेदन करूंगा कि 24 तारीख को ज्यादा से ज्यादा तादाद में पहुंचकर चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा के हाथ मजबूत करें। मैं सिर्फ आपको एक बात कहना चाहूंगा, जितनी समस्या आज है, कोई समस्या जो है उसका कारण क्या है, जब तक उसके कारण का नहीं पता लगाओगे उससे समस्या का निदान नहीं हो सकता। कारण यह है, आज किसान और मजदूर का नेतृत्व नहीं रहा। जब तक आपका नेतृत्व नहीं होगा, जब तक आपका नेतृत्व मजबूत नहीं होगा, किसान और मजदूर मजबूत नहीं हो सकता। आज उत्तरी भारत में एक कांग्रेस पार्टी हुड्डा साहब, बहुत ही सत्कार के योग डॉक्टर केवी सिंह जी, जिन्होंने अपनी बात रखी आपके बीच में, हुड्डा साहब के विश्वास पात्र साथी हैं।
हमारे बहुत ही नौजवान और संघर्षशील विधायक हरियाणा विधानसभा में भाई शीशपाल केरवाला जी, बहुत ही पारिवारिक एक साथी भाई हमारे लखा सिंह जी, पूर्व जिलाध्यक्ष मलकीत सिंह खोसा जी, प्रीतिंदर कौर जी, सरदार केहर सिंह कंबोज जी, शेर सिंह जी, डॉक्टर मनोज सिवाज जी, बाबा भोलानाथ जी, जसवंत कसवा जी, डॉक्टर वाई के चौधरी जी, मास्टर दिलीप जी, गुरुदेव जी, मनोज जांडू जी, सुमित गुदारा जी, हमारे गुरुदेव सिंह कुका जी, वकील साहब जिन्होंने अभी अपनी सारी बात रखी, प्रीतिंदर कौर जी हमारी सरपंच जी, गुरदीप सिंह सरपंच पूर्व सरपंच, पूर्ण सिंह विर्क, दिलबाग सिंह जी, मास्टर गुरबेज सिंह भिंडर जी, दल सिंह किलेवाला जी, मास्टर बलदेव सिंह जी, मोर सिंह पूर्व सरपंच, रंजीत सिंह पुरेवाल, जीत सिंह चकवाला जी, सुचा सिंह भाई जी, सुखदेव सिंह काकू जी, मागी सिंह एक्स मेंबर, सुखदेव सिंह संधू जी, सतविंदर सिंह एक्स सरपंच, स्वर्ण सिंह जी एक्स प्रधान सोसाइटी, गुरुदेव सिंह एक्स सरपंच धर्मपुरा, रणधीर सिंह पूर्व चेयरमैन नगर परिषद, मलकीत सिंह खोसा जी, करम सिंह सरपंच जी, सभी पिता समान बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथी, मातृशक्तियाँ बहुत देर से बैठे हैं और सबने अपनी बात कही। और मैं ज़्यादा लंबी बात ना करते हुए मैं छोटे में अपनी बात कहूँगा। वैसे भी मेरा समय बोलने का निर्धारित किया गया है मंचासीन नेताओं द्वारा, और उसमें से 2 मिनट सबके नाम लेने में जो है मैंने ले लिए हैं। ज़्यादा लंबी बात ना करते हुए आज आपके बीच में हम निमंत्रण देने आए हैं। 24 को सिरसा में रैली करेंगे, 750 शहीद किसानों की याद में रैली करेंगे और इस खट्टर दुष्यंत सरकार को सत्ता से बाहर करने की ललकार करने के लिए रैली करेंगे। तो उस रैली में हमारा निमंत्रण स्वीकार है तो एक बार हाथ खड़ा करके आप बताओ, उस रैली में आप सब ज़्यादा पहुंचो। ये जरूरी है, ऐसी सरकार को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाना जरूरी है। इस बीजेपी सरकार की, खट्टर दुष्यंत सरकार की 2 जबरदस्त मार, क्या अहंकार और भ्रष्टाचार, क्योंकि भ्रष्टाचार के आधार पर सरकार बनी। अभी कह रहे थे कुका सिंह जी ने सही बात कही, ये सरकार लोग नहीं चाहते थे, लोगों ने तो सरकार को बाहर कर दिया था सत्ता से। 2019 में भी 75 पार का इन्होंने नारा दिया था, लेकिन लोगों ने उस 75 पार के नारे की हवा निकाल दी थी। इस बीच एक दुष्यंत चौटाला की पार्टी बनी जिसने कहा कि बीजेपी को करो जमुना पार। बीजेपी वाले कहते थे बीजेपी जाएगी 75 पार पिछले इलेक्शन में, और दुष्यंत चौटाला कहता था बीजेपी को करो जमुना पार। 75 पार जमुना पार, इलेक्शन होते ही दोनों बन गए पक्के यार बन गए, जमा पक्के यार। और हरियाणा में बना दी ऐसी भ्रष्ट सरकार, जनता कर रही है हाहाकार और कह दिया हम समझौता कर रहे हैं, 5100 बुढ़ापा पेंशन पे समझौता कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, अपने बड़े बुजुर्गों से पूछना चाहता हूं, अपने काका ताऊ से पूछना चाहता हूं, वो 5100 पेंशन आई या नहीं आई? भाई किसी की 5100 पेंशन, पहले ये बताओ भाई, जिसकी नहीं आई वो हाथ खड़े करके बताओ भाई किस की नहीं। और अगर भाई किसी की आ रही हो 5100 पेंशन दे दियो भाई खट्टर दुष्यंत सरकार ने, तो उसका फर्ज बनता है कि खट्टर और दुष्यंत की वोट दे। मगर किसी की 5100, क्योंकि धोखा था, 5100 की पेंशन का समझौता नहीं था, समझौता भ्रष्टाचार का था। भ्रष्टाचार की फाइल बंद कराने के समझौते थे और महकमे बांट के, कोई शराब का महकमा, एक्साइज का महकमा, बड़े बड़े घोटाले करने का समझौता था। माइनिंग का महकमा किसके पास गया, शराब का किसके पास गया, बड़े बड़े शराब घोटाले कैसे हो रहे हरियाणा में, हरियाणा को लूटने का समझौता था। बीजेपी ने एक नारा दिया था, आपको याद होगा, नारा क्या था? काला धन लाएंगे, आपको याद होगा, विदेशों से काला धन लाएंगे, हर के बैंक खाते में 15 लाख पहुंचाएंगे। नारा बदल गया, क्या बदल गया? काला धन नहीं लाएंगे, जिसका काला धन पकड़ा जाएगा उसको डरा धमका के बीजेपी ज्वाइन कराएंगे या बीजेपी में समर्थन कराएंगे, जैसे दुष्यंत चौटाला करा दिया, और रातों रात काले धन को सफेद धन बनवाएंगे। ये स्थिति बन रही आपके सामने, भ्रष्टाचार का समझौता। आज भ्रष्टाचार, मगर उससे भी ज्यादा जिससे हम लड़ाई लड़ रहे हैं, अहंकार। ऐसी सरकार
जिसका इतना घमंड, ऐसी घमंड की सरकार की आपने देखा देश का किसान 1 साल तक अपने हकों की लड़ाई के लिए सर्दी में गर्मी में बैठा है लाखों की तादाद में, मगर सरकार ने उनकी सुनवाई नहीं करी। 750 किसानों की जान कुर्बान हो गई, 750 शव वापिस आए इन धरनों से। हर रोज किसी न किसी के, कहीं किसी की कोई चिता जली, किसी का कोई घर उजड़ा, हर रोज किसी का चिराग बुझ गया किसी घर का। लेकिन बीजेपी के किसी सांसद ने, किसी मंत्री ने किसी एक शब्द भी सहानुभूति का ये नहीं कहा कि हमें दुख है, अफसोस है, हम इनकी बात नहीं मानते, लेकिन ये भी देश के नागरिक है, हमें अफसोस है कि भाई किसी का घर उजड़ गया, हम सहानुभूति प्रकट करते हैं। आज तक सहानुभूति प्रकट करने का नाम नहीं लिया। मैं उस देश की संसद का सदस्य हूं, आपके आशीर्वाद से पिछले 20 साल से मुझे ये अवसर मिला है, मगर वो जो 1 साल था जब देश की संसद में हम जाते थे, और क्योंकि हरियाणा से मैं एकमात्र विपक्ष का सांसद हूं, तो क्या मैंने देखा मैं बता नहीं सकता। इतना अहंकार, कहते थे ये किसान इनकी बात नहीं मानेंगे, हम कहते थे किसान की बात नहीं मानो तो इनको किसान मानो, कहते थे किसान नहीं मानेंगे, ये तो उपद्रवी है, ये तो आतंकवादी है, तो देशद्रोही है। और तभी उनकी आंख में आंख डाल के मैंने कहा कि ये देशद्रोही जिनको आप बता रहे हो, ये वही लोग हैं जिसका एक लड़का ट्रैक्टर का स्टीयरिंग पकड़ के देश को खाद्य सुरक्षा देता है, तो दूसरा लड़का स्टेन गन पकड़ के पाकिस्तान और चीन की बॉर्डर पे देश को सुरक्षा देने का काम करता है। आप इनको देशद्रोही बता रहे हैं। ये घमंड, ऐसा घमंड हरियाणा की सरकार को, तो खट्टर साहब को तो और भी ज्यादा घमंड। लगातार कहा, जब आंदोलन चल रहा था तो कहा कि बीजेपी वालों लड़ लेके और इन किसानों की पिटाई करो। कोई मुख्यमंत्री ऐसा कह सकता है? मगर कहा गया। ये अहंकार की बात होती है। हमारी खिलाड़ी जब बहन बेटियां अपने लिए न्याय मांग रही थी, जो लोग उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं वही मुख्यमंत्री, वही हरियाणा प्रदेश के मंत्री उनका तिरस्कार कर रहे थे। उनको जब दिल्ली की सड़कों पे घसीटा जा रहा था, हमारे हर वर्ग के साथ इन्होंने अहंकार और हर वर्ग का अपमान, इनका घमंड 7वें आसमान पे चढ़ गया है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, इनका घमंड तोड़ना है कि नहीं तोड़ना? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तोड़ना चाहते हो कि नहीं चाहते इनका घमंड? ये लड़ाई इनके घमंड तोड़ने की भी है, और ये लड़ाई हरियाणा को दोबारा से विकास के रास्ते पे लेके आने की। मुझे विश्वास है आपके आशीर्वाद से हरियाणा में बदलाव होगा। पिछली बार कसर रह गई थी, कुक्का सिंह जी ने ठीक कहा, पिछली बार ये जेजेपी का चोला पहन के एक पार्टी आ गई, बीजेपी के खिलाफ जो वोट पड़नी थी उस वोट में बंटवारा करने का काम किया। अगर जेजेपी की वोट आज कांग्रेस पार्टी की वोट में आप जोड़ दो तो 2019 में 61 सीट आती कांग्रेस की, 61। और जो निर्दलीय, और अगर इनेलो की वोट जोड़ दो, यहां से निर्दलीय बने लोग बीजेपी को कितना चाहते थे, मैं आईना दिखाना चाहता हूं खट्टर साहब को। अगर इनेलो की और निर्दलीय की वोट भी जोड़ दो तो 75 पार कांग्रेस, पिछली बार ही 75 पार होगी थी। इस बार लोग बहकावे में नहीं आएंगे ये, क्योंकि इनका एक, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, कुक्का सिंह जी आपको भी और आप सबको बताना चाहता हूं, अब एक और समझौता हो गया, जेजेपी और बीजेपी का एक और समझौता हो गया। 5100 का समझौता नहीं है, अब समझौता तोड़ने का समझौता है। इलेक्शन के नजदीक ये समझौता तोड़ेंगे और दोबारा से लोगों के बीच में भेजा जाएगा इनको, और ये कह के भेजा जाएगा कि बीजेपी के जो खिलाफ वोट है उस वोट में डेंट मारने का काम करो। जोन सा ज्यादा डेंट मारेगा, चाचा मान मारेगा कि भतीजा मारेगा, जोन सा ज्यादा डेंट मारेगा उसको उतना मान सम्मान दिया जाएगा बीजेपी द्वारा। ये समझौता है। ये मैं जो बात समझा रहा हूं, ये बात समझ गए कि नहीं समझ गए? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं। ये नहीं समझेंगे तो नुकसान हो जाएगा हरियाणा का, ये समझनी पड़ेगी। तो निश्चित तौर से बदलाव होगा हरियाणा में। पिछली बार कसर रह गई थी, इस बार आपकी सरकार बनेगी, 2-4-6 महीने की बात है, और हम संकल्प लेते हैं 24 को रैली में आह्वान करेंगे, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, और सरकार बनते ही हम 2-3 फैसले आते ही लेंगे। पहला फैसला, पहली कलम से जो 5100 बड़े बुजुर्गों की पेंशन के साथ धोखा हुआ है, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते ही देश में डंके की चोट पे सर्वाधिक बड़े बुजुर्गों को 6000 बुढ़ापा पेंशन देने का काम हरियाणा के अंदर करेंगे। पहला हमारा संकल्प। हम संकल्प, जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी
आज बीजेपी सरकार में अदानी समूह के साथ मिलकर सबसे महंगी बिजली देने का काम हरियाणा में किया जा रहा है। सरकार बनते ही हरियाणा के हर बिजली उपभोक्ता को 300 यूनिट बिजली फ्री में देने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार करेगी। हमारा दूसरा संकल्प। हमारा तीसरा संकल्प, हरियाणा में कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम, किसान को एमएसपी की गारंटी, खिलाड़ियों को सम्मान, और जो हमारे एससी वर्ग के, बैकवर्ड के, छत्तीस बिरादरी के बीपीएल परिवार हैं, जो 100 गज के प्लॉट की स्कीम जो खत्म कर दी सरकार ने, 100 गज के प्लॉट की स्कीम को दोबारा लागू कराने का काम करेंगे। हर पात्र परिवार को 100 गज का प्लॉट भी दिलाएंगे और 100 गज के प्लॉट पर सरकारी सहायता से 2 कमरे का इंदिरा आवास योजना में मकान दिलवाने का काम करेंगे। ये हमारी, जो भी कह रहे थे मकान नहीं आया, अभी लखा सिंह जी बता रहे अपना। और भाई हमारा ये भी संकल्प है, अभी कह रही थी सरपंच साहब कि O2 झील खुदवाने का अपने समय में हुड्डा साहब के समय काम हुआ था, और इस बार ये जो बाढ़ की परिस्थिति बनी, आने वाले समय में इसका एक पूरी तरीके से एक पुख्ता इसका समाधान किया जाए। तो ये भी आज आपने जो बात बताई, ये भी O2 झील को भी आगे जो काम, उस समय काफ़ी काम हुआ था, लेकिन उसके बाद जो O2 झील को में जो कसर रह गई थी, उसको भी लखा जी उसको भी पूरा कराने की तरफ कदम बढ़ाएंगे। और जो स्कूल की बात बताई अपने गाँव में, मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, आज हम विपक्ष में हैं, आज हम विपक्ष में हैं। अप्रैल महीने से नया स्कूल शुरू होता है। अप्रैल महीने या अभी सरकार के पास 2 महीने, आप संतनगर गांव का स्कूल अपग्रेड करने का काम ये सरकार करेगी, मैं खुद धन्यवाद करूंगा। और नहीं करेगी तो भाई अप्रैल के बाद अपनी सरकार बनेगी। सेशन के बीच में, यानी कि अगला जो सेशन है, उस सेशन के बीच में जब सरकार बनेगी सितंबर अक्टूबर में, सेशन के बीच में अपग्रेड करा के भाई जो है 2024 और 25 की जो क्लास जाएगी वो +2 के स्कूल की क्लास संतनगर में जाएगी। आज हम ये अपने गांव के जो आपने स्कूल की बात करी, क्योंकि सही बात है, गरीब का बच्चा पढ़ता है गांव के स्कूल में, लेकिन ये सरकार स्कूलों को बंद करने का काम करे, क्योंकि गरीब विरोधी सरकार है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ भाई, आप सब इस लड़ाई में आप सबका साथ और आशीर्वाद मिलेगा। 24 तारीख को आप सिरसा पहुंचोगे तो एक बार हाथ खड़ा करके सारे साथी, भाई सारे कौन कौन पहुंचेगा 24 को? भाई कोई रह तो नहीं गया भाई? बाकी तो सबने हाथ खड़े कर लिए, मंच वाले रह गए। मंच वालों को से भी आग्रह है भाई, कहीं मंच वाले रह जाए, आप सब पहुंच जाए। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद।